all children. So once again, I am here with your chapter lesson, that is your legislature, and we will today discuss the procedure of making a law. The role of in this parliament, what type of role is played by the parliament of making a law. Yesterday we discussed about a procedure was there. First of all, we have to understand what is a law. Before enacting a law, it is in form of a bill. What is a bill? Bill क्या चीज होती है? It means that if you want to bring a new law in parliament for welfare of the people, and in another way also there, if you want to bring a change in current law, this is called a bill. Bill, it is, yesterday I told you कि bill किस form में होता है? Draft form में होता है. It is in draft form, and the parliament legislates it on it, and the bill becomes a law. And when the president assent is there, it is enacted. This is the process. But today we will understand that the difference between the public bill and private bill. So I told you that whenever a bill is in a form of a draft, and it is that proposed for why the draft is kept for the proposal of becoming a law. And these proposal means the bill that is produced by a public, it is called a public bill, and it is also called a private bill. So here we will discuss the difference between a public bill and private. दोनों में अंतर क्या होता है? So as you know that public sector, whenever we talk about the public sector, it means the government sector. Public bill, it is introduced by a minister, means the minister here means the councils of ministers regarding the welfare of the people, and sometimes the bill can be introduced for bring a change in a law. First I am telling you the public bill here. It is introduced by the minister in the parliament, and the most probability is that the bill would be passed because of the majority of the members of the ruling government is there. And it is especially the bill according to the this is public bill. It is especially the ruling party, the ruling government bill policy. It is introduced because I am talking about councils of ministers. Here the councils of ministers, the minister of the ruling government, and whatever the policy it is introduced in the parliament, we can think about that it is the ruling party's policy. And on the other hand, there one more important feature of this public bill is that the bill is always formulated by the minister, the concerning portfolio minister, and the cooperation with the Ministry of Law. तो उनके कोलैबोरेशन से, यानी क्या कानून है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके कोऑपरेशन के साथ इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है और पास होने के चांसेस रहते हैं. ये है पब्लिक बिल. ठीक है, इसमें एक टाइम पीरियड भी आता है. इस पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस होने के लिए कोई प्री नोटिस नहीं देना होता. ठीक है, कहीं कहीं मेंशन है 7 days प्री नोटिस देना होता है और कहीं कहीं नहीं है. तो पब्लिक बिल जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बिल है, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द प्री नोटिस. बट अगर हम प्राइवेट बिल की बात करते हैं तो प्राइवेट बिल इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनदर मेंबर who are the not ministers but the member of the parliament. है ना, councils of ministers है, cabinet ministers है. These are not the we can say कि member किसके नहीं है, किसी ruling party के member नहीं है. They are the another member of the parliament. If they introduce any bill, this is called a private bill. ठीक है, तो ये प्राइवेट जो मेंबर है वो क्या है, ये प्राइवेट मेंबर मिनिस्टर के अलावा जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको कहते हैं. पहली चीज. सेकेंड थिंग, ये जो बिल आते हैं स्पेशली क्या होता है, जस्ट क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट. दे आर जस्ट गिव द फेवर और जस्ट दे आर इन फेवरिंग ऑफ द ओपोनेंट पार्टी. ओपोनेंट पार्टी के फेवर में होते हैं, वो ऐसा बिल लाने की कोशिश करते हैं जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट में होगी. ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि जब दे वांट टू कि फोर्थ कमिंग जो भी इलेक्शन हो उसमें जो है जो रूलिंग पार्टी अभी है उस पार्टी को ना मिलके दूसरी पार्टी को
वोट मिले ताकि वो अपनी पॉलिसीज के सामने, लोगों के सामने लाए, फॉर्मुलेट करे कि हम लोग भी जो है वो पीपल के लिए वर्क कर रहे हैं। सेकेंड, थर्ड, इट रिक्वायर प्रायर नोटिस। 1 month नोटिस जरूरी है अगर कोई भी बिल लाना है तो। 1 month नोटिस इज रिक्वायर्ड इन दिस, प्रायर नोटिस है। एंड इसके पास होने के चांसेस कम है क्योंकि मेजोरिटी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, ये मेंबर है केवल पार्लियामेंट के, इनके चांस होने के कम, मतलब पास होने के चांसेस बहुत कम है। और ये जो बिल लाएंगे, जो प्राइवेट जो बिल है, इट इज स्पेशली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्निंग मिनिस्टर। वो कंसर्निंग मिनिस्टर जो इस बिल को लाना चाहता है वही लाएगा, उसके लिए कोई और डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्लियर मैंने आपको दोनों पॉइंट क्लियर किए कि डिफरेंस क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ बिल। There are, in according to your textbook and in general, there are 4 types of bill. This is ordinary bill, money bill, financial bill, and amendment bill. Ordinary bill means related to the ordinary matters, not related to the money. Ordinary bills issues related to the public matters, जैसे कि बात कर सकते हैं जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कोई रॉयट्स हैं, वीकर सेक्शन को जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस तरह के कोई इश्यूज मैटर्स जो होते हैं वो विमेन सेफ्टी रिलेटेड हो गए, चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड हो गए, वो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल। अब जो मनी बिल है, आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है। इट इज क्लियरली मेंशन इन, देखो आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल्स का ध्यान रखना है, चाहे आपकी बुक में है या नहीं है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आर्टिकल्स दी पॉलिटिकल साइंस की अगर हम सोल है, अगर हम बात करें ना कि पॉलिटिकल साइंस की सोल क्या है, तो पूरा आर्टिकल है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इन योर एनी फर्दर एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन यू हैव टू मेमोराइज ऑल द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली यही क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपको आर्टिकल ध्यान रखने होंगे। तो जो मनी बिल जो है 110 आर्टिकल रिलेटेड है। अगर हम इसको सर्च करें, if we read about the article 110, there is a number of lists that related to the money bill। कि मनी बिल में क्या क्या चीजें आती है, जैसे हमने तो एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि टैक्सेशन है, ठीक है, फिनेंसेस रिलेटेड है, रिडक्शन है, एक्सपेंडिचर है, ये सब मनी बिल में आता है। बट देयर इज अ नंबर ऑफ लिस्ट दैट रिलेटेड टू द मनी बिल। Financial, sometimes we think that money bill and financial bill is the same. Yes, sometimes it believes, but one more thing is very important. All types of bills that is related to the expenditure, this is called a financial bill. But money bill, it is clearly the provinces, the given the articles, the given the thing is related to the article 110. और जबकि फिनेंशियल बिल्स के बारे में 170, 171, 171 मीन्स कि 117 पार्ट 1 और 117 पार्ट 3, इस तरह से आर्टिकल में फाइनेंशियल के बारे में लिखा हुआ है। आप लोगों ने फिस्कल मेजर्स पढ़े होंगे, फिस्कल क्या होता है? देखो बच्चों, क्या होता है कि फिस्कल को थोड़ा सा समझेंगे। जो फाइनेंशियल है ना, वो फिस्कल से रिलेटेड है। जैसे आप कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो गया, जैसे चीजों की कॉस्ट क्या बढ़ गई है, अब उस कंडीशन में उस कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि एक पुअर व्यक्ति के लिए, पुअर जो सेक्शन पीपल है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है अपनी लाइफ को सस्टेन करना, इन सिचुएशन के साथ फोकस करना। तो फाइनेंशियल बिल वो होता है जो फिस्कल मेजर्स लेके आता है। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं कि रिलेटेड टू द, जैसे कि कोई टैक्स को कम कर देना या किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है, मार्केट के अंदर सप्लाई करना गुड्स की, जिससे कि कॉस्ट क्या है कम कर दें, या दूसरी तरफ कॉस्ट बहुत कम है, उस कॉस्ट को हाई करने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई को कम कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरह से वो चीज होती है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या दोनों में डिफरेंस है। दिस आई इलिबरेट यू इन लेटर टॉपिक। Then the fourth is amendment bill. Amendment bill, you everybody know that needs to bring a change in the constitution, and it can be introduced in any house. But what is required? Both the houses' assent is necessary to bring a amendment in our constitution. So these are the 4 types of bills. Now the next I am going to the ordinary bill.
देखो बच्चों, आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि कोई भी बिल का एक प्रोसीडिंग क्या होती है। अगर किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी क्या प्रोसीडिंग है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी बिल, whenever it is introduced in any house of the parliament, it has to go through the 5 stages। 5 स्टेजेस से। देखो मनी बिल कैसे होता है, सब बिल जितने भी बिल्स है ना, इनके प्रोसेस अलग अलग है। प्रोसेस मीन्स कि इनको जो गो थ्रू होना पड़ता है अपनी स्टेजेस से, वो अलग अलग है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की। इसको 5 स्टेजेस से गो थ्रू होना होता है। इसकी सबसे पहली होती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, मैंने आपको बिल का एक रे चार्ट समझाया था कल, उसी को माइंड में रखना और समझना। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनी बिल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। सबसे पहले बिल क्या है, बिल के माइंड में आते हैं कि जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ फॉर अ न्यू लॉ और टू यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लॉ, इट इज कॉल्ड अ बिल एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रोसेस इज दिस कि वहां पर इंट्रोडक्शन होता है, लॉ के बारे में बात की जाती है या करंट जो लॉ है उसको चेंज किया जाता है। वो जो है फर्स्ट रीडिंग में आता है, इसको नोटेड डाउन हो जाता है। जो भी चीजें होती है ना वहां पर, जो भी बात होती है, बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, इसको जो है नोटेड डाउन हो जाता है। फिर इसको प्रिंट किया जाता है, फिर इसको रीड किया जाता है जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर? यानी फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि जो बिल लाया गया है वो बिल किससे रिलेटेड होगा, आइडिया फॉर ए न्यू लॉ। अपने माइंड में चीज रखे कि आइडिया फॉर ए न्यू लॉ, जैसे मैंने बोला रिजर्वेशन पॉलिसी, दिस इज अ न्यू आइडिया। ठीक है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी का जो आइडिया आ गया, या करंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें जितना परसेंट कोटा हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं उसको कम करना है, तो करंट लॉ को चेंज करना है। क्लियर? सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि उसमें जो भी वहां पर कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होता है, उसको नोटेड डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसको नोटेड डाउन करने के बाद उसको प्रिंट होता है, उसको भी बिल कहा जाता है। जिस भी हाउस में वो होता है वहां पर उसको, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है वहां पर इसको प्रॉपर तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो रीडिंग होती है ना, सेकेंड रीडिंग, इसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है वो उस पर डिबेट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिबेट मीन, समझ लो इस चीज में कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कौन होंगे, तो रूलिंग गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट यानी जिसकी सरकार चल रही है, जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, उनके होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, अदर मेंबर्स भी होंगे, ओपोनेंट पार्टी मेंबर्स भी होंगे। आपको मालूम ही है जितने भी पार्टीज हैं, नेशनल जो पार्टीज हैं, उनको मेंबरशिप लेनी होती है पार्लियामेंट। तो वो जो सारे मेंबर्स होते हैं, अगर कोई बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा तो नेचुरल सी बात है, वहां पर क्या होगा, डिबेट होगा। डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। उस बिल को जो मिनिस्टर लेके आया उसको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे कि ये बिल क्यों लाया गया, इसका इफेक्ट क्या होगा, किन किन लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, इसके गुड एंड बैड साइड इफेक्ट क्या होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट सब चीजों के ऊपर प्रॉपरली डिबेट होता है। ठीक है, वहां से होने के बाद अभी बिल जो है प्रोसेस में जा रहा है, एक कमिटी स्टेज पे जाता है। मैंने आपको बताया था ना कमिटी क्या होता है। एक कमिटी मीन्स इट इज कंसर्निंग टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड बिल आया है वो कमिटी स्टेज से गया। कमिटी स्टेज में क्या होगा, जो कमिटी के मेंबर्स होंगे वो उसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेटी के मेंबर्स भी, गवर्नमेंट के जो आउटर मेंबर है वो भी, जो इनर मेंबर है वो भी, उनको बुलाया जाएगा। कमेटी जो है उनको बुलाती है, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती है कि भाई अगर ये बिल पास होता है तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कमेटी कर सकती है, और उनके अगर सेटिस्फाइड आंसर्स नहीं है तो हो सकता है कमेटी उसको बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट की सजेशन भी देती है। तो ये कमेटी स्टेज पर होता है कि जो एक थॉरली डिस्कशन होता है, कमेटी एक एक पॉइंट को बिल के कंसिडर करती है कि इट इज गुड फॉर द पीपल और नॉट, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है। फिर वो आगे रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट स्टेज आती है,
जिसमें वो जो बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ है कमेटी पे, जो भी दूसरे मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, दे आर इनर और आउटर मेंबर्स, कौन हो गए गवर्नमेंट के, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट मेंबर्स हो गए और प्लस अदर मेंबर्स। और जो रूलिंग गवर्नमेंट मेंबर्स है उनसे, क्योंकि बिल तो वही लेकर आए हैं, तो उस बिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो कमेटी कर सकती है, और कभी कभी उससे रिलेटेड सजेशंस भी दे सकती है, जस्ट वी कैन से अमेंडमेंट सजेशन। उसके बाद ये जो बिल है वो कहाँ जाएगा, रिपोर्ट स्टेज पर जाएगा। रिपोर्ट स्टेज के अंदर ये जो बिल से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन हुआ है, जो भी है, या जो लोग इस डिस्कशन में रह गए हैं वो भी अपने इस समय जो है रिपोर्ट स्टेज पे आके अपने चेंजेस जो है या सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट स्टेज पे जब बिल तैयार हो गया तो अब थर्ड रीडिंग के लिए जाएगा। थर्ड रीडिंग के लिए कहाँ जाता है, पार्लियामेंट के जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है वहीं पर गया है। अब यहाँ पर जो कमेटी ने सजेशंस दिए हैं, कमेटी ने क्या सजेशन दिए हैं, या तो उसने एज इट इज एज बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, या उसने जो भी सजेशंस दिए हैं, अब जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। हो सकता है जो बिल वो पहले लेके आए उनका माइंड चेंज होगा कि नहीं नहीं, इस बिल में तो ये चीजें और होनी चाहिए। लेकिन थर्ड रीडिंग वो स्टेज होती है जहां पर आप बिल के अंदर चेंज नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिल के अंदर चेंज लाना है तो आपको वोटिंग करनी होगी, वोटिंग आपको सेकंड स्टेज पे करनी है, थर्ड स्टेज पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्ड स्टेज के अंदर तो ये होता है कि आप वोटिंग नहीं कर सकते, बिल के जो बिल से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वही प्रोसेस है कि एक्सेप्ट होने के बाद किसके पास जाएगा, सेकंड हाउस के पास। ठीक है, और रिजेक्ट होता है क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया तो रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। जिस हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो मिनिस्टर लेके आया है, तो एक्सेप्ट ही होगा, मोस्टली एक्सेप्ट होता है। रिजेक्ट कहाँ होगा, सेकंड हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस में जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है वहां नहीं। अब प्रोसेस क्या है, ये 5 स्टेजेस है। हर ऑर्डिनरी बिल को इन 5 स्टेजेस से गो थ्रू होना पड़ता है। यहाँ पर एक्सेप्ट होने के बाद ये बिल कहाँ जाएगा, सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में सेम प्रोसेस फॉलो होगा, 5 स्टेजेस फॉलो होगी। वहां पर भी एक बिल को पास होने की जो स्टेजेस चाहिए वो सारी स्टेजेस यहाँ भी होगी। अब यहाँ पर क्या कंडीशंस हो सकती है, what conditions we can just see in second house. It may be possible the bill which is sent to the second house, it may be possible it is as it is as passed by the second house. कोई चेंजेस नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज एज पास हो सकता है। एक तो ये। सेकंड है कि वो पास ना करें, अमेंडमेंट करें, कुछ चेंजेस करें, और उसको जो है चेंजेस के साथ उस बिल को वापस कहाँ भेज दें, फर्स्ट हाउस में। सेकेंड सिचुएशन ये है। थर्ड में ये हो सकता है कि वो रिजेक्ट ही कर दे, नो चेंजेस नो पासिंग, बट ऑल टुगेदर दे कैन रिजेक्ट द बिल। ये बिल को रिजेक्ट कर दे तो बाकी खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, नए अगर जिस रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल पास ही नहीं होगा। चलिए अभी जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्लास 11, कोई एक ऐसा बिल बताइए जो एक हाउस में तो पास हुआ लेकिन दूसरे हाउस में नहीं हुआ। कोई एक ऐसा बिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ पीयूष, निज बताइए। निज, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जो विमेन रिजर्वेशन सीट है वो 50% करने की बात हुई थी, वो एक हाउस में पास हुआ था, एक हाउस में पास नहीं हुआ था। हाँ है तो यही वाला बिल, लेकिन 50%, देखो मेरी बात सुनो, जो अपने पंचायती राज है ना वहाँ पर तो 1/3 सिस्टम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें जो है अभी तक जो विमेन का जो कोटा है 1/3 करने की, कब से कम मैं इतने सालों से बना रही हूँ, मेरे हिसाब से
इतने टाइम से वो पेंडिंग ही है, एक हाउस में पास होता है तो दूसरे हाउस में पास नहीं होता है, ठीक है। yes. तो ये सिचुएशन जब आती है तब वो क्या होता है, बिल पास नहीं होता और वो पेंडिंग ही रहता है, ठीक है। तो ये एक बिल था जिसकी हमने बात की। अब यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, अगला जो है रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म हो गई उस बिल की। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है, make not take any consideration, keep the bill pending। पेंडिंग हो गया, ना कोई जवाब दिया ना कोई एक्शन लिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि टाइम जो लिमिट है वो नहीं है कि कितने टाइम तक आप पेंडिंग रख सकते हैं। 6 मंथ्स का है, फिर उसके बाद इंक्रीज जो है उसका भी सिस्टम चलता है, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। अब हमने बात की सेकेंड हाउस में ये सिचुएशन आ जाती है। अगर इसी से रिलेटेड मैं आपको और चीजें इससे समझाऊंगी कि मान लीजिए 2 conditions are there, if the bill that is introduced in one house sent to the second house, नेचुरल है दोनों हाउसेस का जो है सेंट होना जरूरी है। पहले हाउस ने जो बिल भेजा दूसरे हाउस को, दूसरे हाउस ने उस बिल को क्या किया, एज इट इज एज एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरे हाउस ने बिल को एक्सेप्ट किया विद सम चेंजेस दैट इज सजेस्टेड बाय द फर्स्ट हाउस। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, बिल पास हो जाएगा बोथ ऑफ द हाउसेस, देन इट विल सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने ये बात की कि पहले हाउस ने जहां पर बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, दूसरे हाउस के अंदर गया वो बिल, वहां पर उन्होंने उस बिल को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक ये सिचुएशन। दूसरी वो सिचुएशन जहां दूसरे हाउस ने उस बिल पर कुछ अमेंडमेंट कुछ चेंजेस की बात की, व्हाट इज रिटन हियर। इन बोथ द सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पर डेडलॉक होगा। डेडलॉक मीन्स कि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे बिल को पास होने। अब इस डेडलॉक को दूर करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि प्रेसिडेंट को जॉइंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी, दोनों सेक्शन दोनों जो हाउसेस हैं उनकी मीटिंग बुलानी होगी, और दोनों हाउसेस की मीटिंग में क्या होगा कि वहां पर जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उनकी वोटिंग होगी, ठीक है, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और जो इसका जो है स्पीकर ऑफ द हाउस वो वहां पर उस मीटिंग को पूरा का पूरा जो है उसका मैनेज करना, उसका संचालन करना, वो सब होगा। उसके बाद भी अगर वोटिंग के अंदर, वोटिंग में भी क्योंकि मेजोरिटी वोट चाहिए होते हैं, आपको मालूम है स्पेशल मेजोरिटी वोट होते हैं और सिंपल मेजोरिटी होती है। तो सिंपल मेजोरिटी जो है हाफ ऑफ द मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, 50 मेंबर है तो 25 का चाहिए। और जहां पर हम 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेजोरिटी चाहिए। उस सिचुएशन के अंदर अगर मेजोरिटी मिलती है वोटिंग में और दोनों हाउसेस की, तो बिल जो है वो पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंस के लिए और वो लॉ बन जाता है। बट इन दैट सिचुएशन कंडीशन एक और भी है कि अगर वोटिंग के अंदर जो प्रेजेंट मेंबर्स वोटिंग है उतनी मेजोरिटी ज्यादा उसके जो है अपोज में जा रहे हैं, फेवर में कम है, तो भी बिल पास नहीं होगा। ये सारी सर्कमस्टांसेस हैं एक बिल को पास होने के लिए। इन सब जो यूँ कहा जाए कि स्टेजेस से निकलना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बिल को लॉ बनाना है बहुत सीरियस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस से निकलना पड़ता है। अब आप तो सोच सकते हैं कि इंडिया में जो नए लॉ बने हैं वो किस तरह से बने होंगे, कितना कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस हुआ होगा मिनिस्टर्स ने, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने, उन सब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया कि बिल्स को पास होने के लिए क्या करना होता है। अब हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर क्या है इसमें वो बात करेंगे। देखो प्रेसिडेंट के पास 2-3 जो है कंडीशंस आती है। क्या है, मान लीजिए कि दोनों हाउसेस ने बिल पास कर लिया, ठीक है, दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट को
अपना एसेंट देना होगा, दे देता है। उसको पता है कि उसकी जो पावर है वो कितनी है, लिमिटेड ही है। सेकेंड कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, सेंड बैक, टू द पार्लियामेंट, वापस कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन कि भाई इस बिल के अंदर ये जो रिकमेंडेशन दी गई है, आई एम नॉट एग्री विद ऑल दीज रिकमेंडेशन, तो रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा। अब रिकंसिडरेशन के लिए गया दोनों हाउसेस में, और दोनों हाउसेस ने फिर पास कर दिया बिल को, उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, और साइन करते ही वो लॉ बन जाएगा, और जो हमारी कंट्री की जो स्टैट्यूट बुक है, कानून की किताब है, उसमें लिखा जाएगा। एक और सिचुएशन वो ये है कि अगर बोथ द हाउसेस उन्होंने बिल पास कर दिया है लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको पेंडिंग रख दिया है, कोई जवाब नहीं दिया, अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पावर नजर आ रही है हमें, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर ये जिक्र नहीं किया कि प्रेसिडेंट कितने टाइम तक एक बिल को पेंडिंग रख सकता है। एक लास्ट जो मेरा चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि एक बिल ऐसा था कि प्रेसिडेंट ने उसको रखा और गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो बिल तब तक पेंडिंग ही रहा, और नेक्स्ट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया, तो वो बिल जो है वो खत्म नहीं हो गया। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की थोड़ी सी पावर नजर आ रही है कि वो पेंडिंग रख सकता है बिल को, कोई टाइम पीरियड नहीं है कितना, तो यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रेसिडेंट की पावर को रिलेटिंग टू द बिल एसेंस, यहाँ पर एक उसकी विक्टो जो पावर है वो सस्पिशियस है, इसलिए हमने इसको बोला पॉकेट विक्टो। जहाँ पर कैसी पावर है, विक्टो पावर अपने आप में क्या होता है, लास्ट डिसीजन होता है विक्टो का मतलब, लास्ट डिसीजन विक्टो पावर होती है। विक्टो पावर लास्ट डिसीजन, यानी मैंने कह दिया कि उसको फांसी, प्रेसिडेंट क्या है, फांसी की सजा, मालूम है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि किसी की लाइफ से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि उसको कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक अलग पावर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, एक गवर्नमेंट को हटाना या उसको रूलिंग गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली काम करने देना, या कोई ऐसा मैटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम प्रेसिडेंट का एसेंट चाहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को एसेंट क्यों देना पड़ता है, बिकॉज उसकी पावर क्या, विक्टो तो है, लास्ट डिसीजन पावर तो है, लेकिन वो भी कितनी है, थोड़ी सी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉकेट विक्टो, जहां पर उसको मजबूर होकर उस पर साइन करने ही पड़ते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट की ज्यादा पावर्स इसमें नहीं है। तो हमने सारी कंडीशंस को देखा कि क्या क्या हो सकता है, और उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को कब कब साइन करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, है ना, अमेंडमेंट बिल, इनकी। ऑर्डिनरी बिल हमने कर लिया है, अब हम थोड़ा सा मनी बिल को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बिल मनी बिल है, कौन बताएगा, चलो तुम ही से पूछूंगी ये क्वेश्चन, who will decide this is the money bill, who has the power to decide the money bill, raise your hand. Any knowledge do you have related to this money bill? Okay, no problem. चलिए, मैंने बताया कि मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में क्लियर लिखा है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने क्योंकि आपको पहले ही बताया कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में। देखो, मनी बिल जो अपने आप में है, एक तरह से ऑल बिल्स रिलेटेड टू द फाइनेंस आर कॉल्ड फाइनेंशियल बिल। Except the article except which is
मेंशन इन आर्टिकल 110। अब हमें ये समझना है कि आर्टिकल 110 कहता क्या है। आर्टिकल 110 कहता है द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी टैक्स का इंट्रो करना है, अबॉलिशन करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आर्टिकल 110 कह रहा है, मैं और आप नहीं कह रहे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जहां पर ये चीजें हैं, एलोकेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, इट इज कॉल्ड अ मनी बिल। दूसरी बात कहते हैं कि बोरोइंग मनी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। बोरोइंग मनी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स एनी रीजन कि आपको क्या जरूरत है, मनी की, और व्हाट पर्पसेस, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और स्टेट डेवलपमेंट। In that conditions where the article 110 हमको क्या कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जो पैसा आप लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मनी बिल। ठीक है, दो हमने कंडीशन पढ़ी। तीसरा देखो बच्चों, कंसोलिडेटेड फंड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसोलिडेटेड फंड? देखो, कंसोलिडेटेड फंड होता है जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्स के थ्रू, या ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी लगाते हैं हम लोग, है ना, या किसी भी मीन्स से रिलेटेड टू स्पेशली टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड ऑल दैट, वो जो फंड होता है वो कंसोलिडेटेड फंड होता है। ठीक है, अब इस कंसोलिडेटेड फंड को प्रोटेक्ट करना, इस कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना, इस कंसोलिडेटेड फंड का पैसा जो है फॉर अनदर पर्पसेस यूज करना, ये सारा का सारा मनी बिल आएगा। ठीक है, ये मनी बिल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी एक्सपेंडिचर का डिक्लेरेशन करना कि भाई स्टेट डेवलपमेंट के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोई एक्सपेंडिचर करना है, कोई खर्चा करना है, वो रिलेटेड जो सारी चीजें होंगी वो मनी बिल में आएगा। ठीक है, तो दीज आर रिटन वेरी बिग लिस्ट इज गिवन देयर, कि बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें मनी बिल से रिलेटेड और भी बहुत पॉइंट्स है। आई जस्ट गिव यू द मेजर पॉइंट्स ऑफ ऑल दिस, कि जो मेजर पॉइंट इसके अंदर है कि मनी बिल क्या है, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इजी पॉइंट मैंने आपको दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मनी बिल और फिनेंस जो बिल है, जो फिनेंशियल जो बिल है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मनी बिल की और क्या पहचान, हमने ये चीजें पढ़ ली। तो अब बिकॉज हमारे ये इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मनी बिल सच्ची में ये है क्या, क्योंकि फाइनेंशियल बिल को भी अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ समझ में आता है कि मनी बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि बच्चों ये मनी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है, तो हो सकता है कि आप पहचान नहीं कर पाओ, लेकिन मैंने साथ में कंडीशंस लगा दी तो आप झट से कहोगे मैम ये मनी बिल है और ये फाइनेंशियल बिल है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज हमने और क्या कहा, मनी बिल की पावर राज्यसभा की पास से 14 डेज की है। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद दोनों हाउसेस के साथ 14 डेज में अगर वो नहीं रिप्लाई करता है तो वो मनी बिल पास हो जाता है, और प्रेसिडेंट के पास भी इसके अंदर कोई पावर नहीं, उसको असेंट करना होता है। तो ये मनी बिल है। और वही हम बात करते हैं मनी बिल के अलावा फाइनेंशियल बिल की। तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल बिल का दो, देखो आर्टिकल जो 1171, 1173, दो तरह के फाइनेंशियल बिल हैं ये भी। अब अगर हम जनरल में फाइनेंशियल बिल को समझना चाहते हैं तो फाइनेंशियल बिल जो होता है उसमें फिस्कल जो है मैटर्स रिलेटेड होते हैं। फिस्कल मैटर मैंने अभी बताया कि कहाँ पर टैक्स को इम्पोज करना है, कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर हमें गवर्नमेंट जो है, एक फिस्कल जो मैटर्स है ना, इसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है कि फिस्कल मैटर्स में क्या क्या चीजें आती है। तो उसमें हमने टैक्सेस को कम ज्यादा करना है, ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी लगानी है, कम करनी है, ये सारे मैटर्स जो आएंगे
है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही, लेकिन आर्टिकल 117(1) और 117(3) जो बोल रहा है वो एक डिफरेंट आपको बोलेगा, और 110 जो आर्टिकल है वो अलग चीज रखेगा। दोनों है फाइनेंस। हमने कहा ऑल मनी बिल दैट ऑल रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एंड ऑल दैट, दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल बिल। लेकिन ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, मनी बिल्स आर कॉल्ड द फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ रही होगी। आगे हम कोई कंफ्यूजन बिना, जो चीज मैं आपको और समझा रही हूँ उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 117 और आर्टिकल 117(1) एंड पार्ट 6 दो फाइनेंशियल बिल्स के पार्ट है, दोनों में फर्क क्या। दिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमें चीजें तभी समझ में आएगी जब हम उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने आपको फिस्कल मैटर्स बोला। फिस्कल मैटर्स क्या होते हैं? दैट की एक्सपेंडिचर हमें रेज करना है, उसको लो करना है। कॉस्ट इन्फ्लेशन हो गया एट दैट पीरियड, उस इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो तरीका क्या है। ये सारे जो भी मैटर्स है वो फाइनेंशियल बिल में आएंगे। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल बिल की और क्या पहचान। फाइनेंशियल बिल जो है वो कहीं किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नो नीड टू गिव अपार्ट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। रिजेक्ट भी हो सकता है, जबकि हमने मनी बिल में क्या देखा, रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो हम और इसको कल जो है मैं इस दोनों का डिफरेंस आपको और बताऊंगी और नोट्स में भी दूंगी, ताकि आपको बहुत क्लियर चीजें समझ में आए। अब मैं आपसे 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट बात करूंगी मैं आपसे।